रिस्क लेने में लॉस क्या है भाई? बहुत ज्यादा क्या होगा आपका भाई? घर है वो सेल हो जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी। When they come for the admission process and all, what are the typical questions that they ask? How do you build that trust factor कि वो आपके पास ही एडमिशन करवाएं? देखिए, डिस्कवर फर्स्ट स्टेप का मार्केटिंग बजट है 0, ठीक है, फॉर एडमिशंस, Okay. एटलीस्ट ऑन आवर सेंटर्स। द रीजन इज वी गेट मोस्टली पेरेंट्स बाय रेफरेंसेस। देखिए, जब पेरेंट एंटर करता है ना किसी भी प्रीमाइसेस में, हमारी डीएफएस की प्रीमाइसेस खुद इतनी लाइवली होती है, ही अंडरस्टैंड द जेस्ट कि दिस इज द राइट प्लेस। सबसे बड़ी चीज प्री स्कूल में अगर किसी पेरेंट को देखना चाहिए कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो कैसे लोग हैं। Right. What kind of teachers are there? As a parent, you should have a thought process. Yes, this organization management has put up so qualified teachers for my child. फिर आपका neatness. Third comes your curriculum. Curriculum, in my view, is extremely important. It plays a major role. What are the main revenue streams in the preschool business? So a lot of companies are there, so which reimburse the daycare payment as per 2017 Maternity Act. Okay. They reimburse the daycare payments to us. वेलकम बैक टू द तंजर कल्ची शो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज द को फाउंडर ऑफ डिस्कवर फर्स्ट स्टेप, चेन ऑफ प्री स्कूल एंड डे केयर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ ही हैज मेड दैट बिग जंप फ्रॉम आईटी टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ द प्री स्कूल बिजनेस एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट आर द इंटीग्रिटीज अराउंड इट। विल टॉक अबाउट द मेजर कंसर्न्स ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे enroll their kids into the preschool, that is their safety and privacy. Without wasting any time, let's get started. Hello, Vaibhav ji. Hi, Thank you hi. for being part of the show. Thank you for inviting me. I think I can relate to your journey because I too am from the IT background. Okay, almost spent more than like almost 15 years into the IT space, and then I made a switch and इस फील्ड में एंटर किया है मैंने. From there I can relate कि आपने भी क्योंकि IT से स्विच करके अपना कुछ स्टार्ट किया है, तो I want to understand like वो स्टार्ट कैसे हुआ. Okay, what was that transition thing? वो चाय की ट्रप्पी पे रोज बिजनेस प्लान बनते हैं. Okay, तो कई लोग जो सुन रहे हैं शायद उनके भी ऐसे प्लान बन रहे होंगे कि अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है. So maybe that will be helpful for them. हमेशा से ही रहा कुछ ना कुछ पैरेलल. Okay. It is nothing like कि after IT I started. In fact, when I was doing my engineering, then also I used to take tuitions. Okay. But I never advertised that thing कि I want to take tuitions. It's some मेरे ही रेफरेंस में आ जाता है. क्लासमेट्स वगैरह, कॉलेज मेट्स खुद ही आ जाते थे वो. Okay. ठीक है, तो वो एक पैरेलल चलता था, बट उस टाइम हम फीस नहीं लेते थे. आफ्टर कॉलेज आई जॉइंड IBM, तो फर्स्ट कंपनी वाज IBM. आई हैड एन ऑप्शन कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर इन्फोसिस आल्सो, मैसूर कैंपस, एंड IBM here in Noida. Okay. But I prefer to this IBM only because of my home location, and I want to पास near to पड़ेगा. my mom and everyone. But that time also it automatically came to me. I started again tuitions. Okay. Okay, for the school children, normal 7-8 people, and I was always workaholic kind of a person. Okay, don't wanted to waste the time in anything. So it continued till I got married. But again, it was a 4-5 years time period where it was parallel thing. Okay. So it was a gap for only 2 to 3 years where I didn't do anything parallelly. But during that period also, in office also, I was working parallelly on multiple projects. So I started this in 2017. I would say by nature, by God grace, education here and there comes to me in and around. Okay, because earlier I used to Tuition take से tuition चलो. and everything. Right. So it was inclining me towards the education thing itself. So then it gets started. I have my co-founder Nalini ma'am, Nalini Raghuvanshi. So we are a family friends only, and we met. We decided, she was already running a preschool at a local level, but then I came into the picture. Then we gave it a complete strength and strategy, Okay. complete framework that how we can तो वो IT का एक्सपीरियंस आपने यहाँ यूज किया. kind of, you can say that. But again, I started it without thinking anything. Okay. Okay, because you asked me how the transition takes place and how it should be. मेरा मानना ये है कि too many discussions will never lead to any decision. Right. Problem क्या होती है, people tend to over discuss फिर lot वो of ओवर things. थिंकिंग हो जाती है. हाँ, ठीक है, because if you are going to look around others, you cannot put your thing into the system. Correct. Right, because you are getting inspired by anybody else's success, you are getting demotivated by anybody else's failure. Sir, my belief system is आपका लॉस या आपका फेलियर मेरा लॉस या फेलियर नहीं बन सकता. आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस डिफाइन नहीं हो सकती. करेक्ट. राइट. सो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप इम्प्लीमेंट करो एक बेसिक
जो चेकलिस्ट होती है कि ठीक है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड जस्ट वट एवर यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स आप उसे कर लो। कर लो, करेंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा। करेक्ट, फिर वो रिग्रेट ना रहे ना। अब व्हेन वी स्टार्टेड इट आल्सो, तब हमने फ्रेंचाइजिंग कभी भी नहीं सोची थी कि वी विल एक्सपैंड। ओके, एक ये था कि एक पैरेलली एक सेंटर हो जाएगा, जॉब अपना कर ही रहे हैं तो ठीक है। बट सूनर और लेटर वी गॉट गुड रिजल्ट्स, पेरेंट्स एक्नॉलेज्ड अस फ्रॉम द डे वन। इट वाज द बेस्ट पार्ट दैट एवरीबॉडी ऑलवेज आस्क कि ये आपने फ्रेंचाइजी ली है क्या। ओके, और आज भी वी स्टार्टेड इन 2017, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 इयर्स। अभी भी जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आपने ये फ्रेंचाइजी ली है क्या। राइट। एंड इनफैक्ट कई साल तक तो मेरे कजन्स की, भैया ये आपने फ्रेंचाइजी ली होगी। हाँ, तो मेन मेन ब्रांच कहाँ है? हाँ, सो वेयर इज द मेन, सो हु इज द मेन गाय। सो राइट, ये शुरू से रहा कि यार चीज तो अच्छी बनाई है, तो बिकॉज दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग। राइट, एंड एट द सेम टाइम ये भी लगता था कि लोग मुझे डाउट कर रहे हैं कि आई कैन नॉट क्रिएट दिस थिंग। ठीक है, मतलब मेरा बहुत बड़ा मानना है लक में और डेस्टिनी में कि अपने आप चीजें आती चली गई, बट हाँ हमने कभी उसे होल्ड बैक नहीं करा कि नहीं राइट, सोचेंगे, राइट, जो आया उसे कर लो, बात की तो फिर बाद में पता चली हाँ, जाएगी। बाकी तो गॉड ग्रेस। तो आप आईटी में जब थे तो आपका रोल क्या था वहाँ पे, लाइक व्हाट वर यू इनटू? आईटी, देखिए अब आईटी का, हाँ जो भी अगर बच्चे देख रहे हैं कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको कि जो भी कंपनीज रिक्रूट करती हैं, दे जस्ट रिक्रूट यू। एचआर के पास या कंपनी के पास एक टारगेट होता है, ठीक है, कि हमें 100 बच्चे को हायर करना है, 20 बच्चों को हायर राइट, राइट, करना राइट, है। बेसिक रीज़न उसमें यही होता है कि जो आज हम एक एक्सपीरियंस को सैलरी दे रहे हैं, उस एक एक्सपीरियंस में मेरे पास 10 रिसोर्स आ जाएंगे, करेक्ट, और उसमें से वो 5 लोगों को मैं सिखा के वो उसके बराबर काम कर देंगे। तो ये तो रीज़न होता है हायरिंग का। राइट, अब क्या है कि जब कंपनी आपको हायर करती है, दे डोंट टेल यू इन विच प्रोफाइल दे विल पुट यू, करेक्ट, वेदर इट इज आईबीएम और एनी कंपनीज। जब वो फ्रेशर हायर करती है, कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। व्हेन आई वाज हायर्ड फॉर एयरटेल प्रोजेक्ट। ओके, आईबीएम एंड एयरटेल वर पार्टनर्स अप टू एन एक्सटेंट एट दैट टाइम, अब तो बहुत लिमिटेड रह गया है शायद। और आई वाज पुट अप ऑनटू द डेटा सेंटर A14 नोएडा, दे हैव अ डेटा सेंटर। तो वहाँ पे अलग अलग टीम्स थी। इट वाज ओके, अ टेक्निकल टीम ओनली, बट इट वाज सपोर्ट प्रोजेक्ट था। ओके, आईबीएम के टूल्स होते हैं, टिवोली टूल्स वो लोग कहते हैं, जैसे राइट, राइट, मैक्सिमो, एससीसीडी, हाँ, टिवोली टैटम। सुना है मैंने। हाँ, सो दैट दोज काइंड ऑफ टूल्स वर देयर। so I was, one tool was there which was given to me. ओके, ओके, इट वाज नॉट कि फ्रेशर गए हैं या आईटी से इंजीनियर हैं तो आपको सीधे डेवलपमेंट का काम है या कुछ राइट, ऐसा राइट, कुछ नहीं है। अच्छा, आई वाज लकी टू फॉल इनटू एटलीस्ट इनटू अ बिट ऑफ टेक्निकल फील्ड। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हायर हुए थे, वो कमांड सेंटर की जॉब में हाँ, वो उन्हें डाला। इट वाज अ प्योरली अ कॉल सेंटर कॉल जॉब, सेंटर कुछ के। इंसिडेंट मैनेजमेंट, कुछ चेंज मैनेजमेंट। सो मेरा मानना ये है कि अगेन योर डेस्टिनी विल प्ले द रोल कि आपको कहाँ पे फॉल इन करा जाए। इनफैक्ट आई वाज इंटरव्यूड बाय द DB2 मैनेजर, ओके, but I was given the tools team when that manager came in, so I on the floor कि I hired you for my team, but वो बाद में change होता नहीं है, तो हुआ नहीं। अब I don't know what happened and what not happened. I am not an IIT or someone or a very good grade or something. I was an average student. एक मेहनती बच्चा, कहते हैं मेहनती में था कि बस, समझ में नहीं आ रहा, 10 बार 100 बार करूंगा तो मैं कर लूंगा। तो that राइट, kind of a person I was. IBM I worked for 3 years, then I joined Birlasort for 1 year. Then again I was called back by IBM as a contractor, then I again worked for them for 3 years. ओके, But this time I was working for Africa project. मेरा inclination again था project management side पे। ओके, But again that transition was also very tough. ओके, हाँ, I did my PMP certification when I was in IBM. It is one of the toughest राइट, certifications and the पीएमपी तो है। costliest one. You have to put efforts a lot. And fortunately, I didn't had kids that time, so I studied for 3 months actually, hardcore. The way we study in कॉलेज, engineering colleges and राइट, राइट, everything. तो 3 महीने मैंने उसमें बहुत पढ़ाई करी, and I was the youngest PMP certified into entire IBM. ओके, हाँ, सो IBM, फिर सेफ स्क्रम, फिर तो सारे हाँ, फिर तो सर्टिफिकेशंस चलते वगैरह। रहते हैं लाइन। बट अगेन इट पुट मी एन एफर्ट टू गेट माई सेल्फ ट्रांजिशनड। ओके, सो अगर मैं लास्ट, आई वर्क फॉर कोफोज, आई लेफ्ट द जॉब इन 2022। आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट हेड ओवर देयर। ओके, Okay, managing multiple projects and everything. So I was inclined towards project manager, and when I achieved it, I gave up my job. आपने वो एक्सपीरियंस ले लिया ताकि अब अपना प्रोजेक्ट मैनेज हो सके। हाँ, बट अगेन जॉब और आपका बिजनेस, do not get confused by it. It is absolutely two different side of the poles. Job in any day is extremely
easiest thing. हम्म, ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ आपको अगर वो दूं टैली, पढ़ाई सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, पढ़ाई के बाद नौकरी करना और आसान चीज़ है, और फिर आता है आपका बिजनेस. ओके, हाँ, because see, being an entrepreneur, when you start the things, you don't have any assurity. But when you join a job, you have a surety that by एंड 30th you will get your salary, or राइट, whatever the salary cycle is, 10th or राइट, 15th or whatever it is. राइट, राइट, So there is a difference into it. वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कई लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलर चेक्स आ रहे हैं, एंड बिजनेस में यू नो दैट देयर बी अ गैप, इट विल बी अप्स एंड मेरा डाउन्स, तो कई मेरा लोग वो रिस्क नहीं ले इसमें पाते हैं. मेरा मानना इसमें ये है कि रिस्क लेने में लॉस क्या है भाई, बहुत ज्यादा क्या होगा आपका भाई, घर है वो सेल हो जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, बच्चे थोड़ी देर 6 महीने साल भर घर बैठ जाएंगे. आप मुझे एक बात बताओ, जब ये ले ऑफ्स होते हैं, हम्म, ठीक है, क्या जो 5 साल पहले ले ऑफ हुआ था जिस आदमी का, अगर आप ढूंढोगे वो डेटा, तो वो आज कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाएगा. करेक्ट. तो आप करके देख लो ना. यही बात शायद कई लोग नहीं समझ पाते हैं. आई मीन दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि वो उस रिस्क से ही डरते हैं, इसीलिए कई लोगों ने आज भी अपना कुछ करने का सोचते रह गए. I lost my dad in 2009. I was in college only. ओके, ठीक है, January was the month, and it was a cardiac arrest while he was sleeping. Okay, and we lost everything. ओके, ठीक है, we didn't had any asset or anything, and somehow again कुछ ना कुछ तो हो ही गया. राइट, हम पढ़ भी, in fact I got scholarship in my college when they get to know okay all these things are happening with me, so my complete fees was waived off, hostel Right. fees was waived off, so I completed my BTech and everything this way. And this is a completely bootstrapped company. There is no loan, राइट, there is no funding we have taken yet, there is no debt on the company as well. So दैट्स ग्रेट. अब क्या है कि ना वो डर, वो फियर, खत्म वो हो गया. है ही नहीं. अगर आज हम कुछ कर रहे हैं भाई, ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग करना नहीं चाहते. हम्म, जैसे देयर वाज अ सिनेरियो ऑफ कोविड, वी स्टार्टेड इन 2017, कोविड स्टक इन 2020, it was almost for 2 years, राइट, 2020 to 2022. Now what were the options we had? या तो बंद कर दो और बैक टू जॉब. अब अगर उस समय बंद कर देते हम, तो कंपनी बंद हो जाती. राइट, बट वी रिटेन्ड इट. पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, पैसा तो औरों के पास भी नहीं था, बट समहाउ वी केम आउट ऑफ इट. करेक्ट. थोड़ा सा मतलब लोगों को फियर, ठीक है, होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेक माई एग्जाम्पल. भाई मेरे पास तो कोई बैक है नहीं, हम्म, ठीक है, बट स्टिल बाय नेचर आप कह लें या मेरा बिहेवियर पैटर्न कह लें या जो भी कह लें, आई एम द रिस्क टेकर. सेम हियर. आई एम नॉट श्योर लाइक वेदर आई डिस्कस विथ यू और नॉट, क्योंकि मैंने भी यही काम किया, ऑलमोस्ट सेम थिंग काइंड ऑफ थिंग. I started my career into education sector. ओके, So I was into like workshops वगैरह देता था मैं कॉलेजेस में जाके Okay. across India ठीक है. in the engineering colleges, and those were into information security and cyber security. तो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस प्योर ट्रेनिंग में है, एंड दैट हैज ऑलवेज बीन लाइक क्लोज टू माई हार्ट. ओके, तो जब मैंने ट्रांजिशन करके जॉब्स में सर्विस इंडस्ट्री में आ गया, तो आई वॉज मिसिंग दोज डेज वेर आई हैड द ऑप्शन टू इंटरेक्ट विद पीपल, स्टूडेंट्स एंड अदर्स. तो इट वॉज वो एक चीज़ थी जो लाइक होता है ना, योर कॉलिंग, कि हाँ वो हमेशा बुलाती रहती है. तो आई ऑलवेज यूज टू ट्राई पैरेलली कुछ ना कुछ, की अपॉर्चुनिटी मिलता रहे. तो फ्रीलांसिंग में एक वर्कशॉप भी मिल जाए महीने की, 6 महीने में एक मिल जाए, एटलीस्ट आई गेट अ चांस टू बी बैक ऑन टू दैट स्टेज एंड ऑल. तो वो चलता रहता था अंदर, माइंड में भी चलता रहता था कि वापस कैसे होगा, वापस कैसे होगा. एंड दैट इज़ वेयर आई ग्रेजुअली मूव्ड इनटू दिस. मैं कहा ट्रेनिंग्स में आई ट्रांजिशन, but at least podcast के through I'll be able to interact with people, and then parallelly I'm working on other things also which will be into the education sector. गुड. तो मैंने अपनी जॉब भी इसीलिए छोड़ी. अब मैं कहा जॉब के साथ नहीं हो पाएगा ये, आई नीड फुल डेडिकेशन इनटू इट. राइट. छोड़ दूँ, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, एज यू सेड, ज़्यादा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. एक पॉइंट के बाद मतलब सी यही, वी आर ऑलमोस्ट इन 30s and 40s, राइट. तो ये एक टाइम है, आप एक कुछ करके देख लो. जॉब में तो इट व्हेनेवर यू वांट यू कैन गो बैक Right. एनी टाइम, थोड़ा बहुत पैकेज ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे. नीचे होगा. सो जब आपने फाइनली डिसाइड किया कि अब ठीक है मेरा काम तो चल रहा है पैरेलली, एंड नाउ आई वांट टू गेट, बिकॉज इफ आई रिकॉल यू
लेफ्ट योर जॉब इन 2022. यस मतलब यस कोविड का जो स्ट्रगल फेस था उसके बाद आपने जॉब छोड़ी है. हाँ इट वाज मोर टफ आई गेस. टफ तो क्या था इनफैक्ट स्टिल अगर मैं एक कॉन्शियसली बात करूं तो इट वाजंट अ राइट डिसीजन गुड और बैड तो मैं नहीं कहूंगा इट वाजंट अ राइट डिसीजन ओके. आई वाज ऑन अ एक्सट्रीमली गुड पैकेज राइट. एंड इट वाज वर्क फ्रॉम होम ओके. ठीक है एंड आई वाज मैनेजिंग इट वेल but what happens coincidentally during those periods my calls were scheduled in office at around 11 to 1 kind of a thing and that is the peak time for me as well In into the my school. school or franchisee meetings and everything. Right. I was giving an update. I didn't had an update. Okay, in my office, and I was on a call with directors and the vice presidents. So I just hanged up the call. I simply said that, ma'am, my reporting manager was a female. Okay, so I said, ma'am, I'll give you a call back. And I left the call. And I called someone in the office that यार resign कैसे करते हैं. अच्छा. आई वॉजेंट अवेयर बिकॉज मैं तो यहाँ बिजी था ना मैं तो पोर्टल्स कभी देखे ही नहीं थे ऑफिस की कि कहाँ से रिजाइन डालते हैं क्या करते हैं ठीक है तो क्या क्या हुआ मैंने कहा पहले बता किसी को बताना है सो उन्होंने बताया आई पुट द रिजाइन देन आई कॉल्ड माय मैनेजर मैम दैट आई हैव पुट डाउन द पेपर्स एंड नो डिस्कशन आई सर्व्ड माय नोटिस पीरियड आई कंप्लीट 3 months नोटिस पीरियड आई सर्व्ड देन आई टुक अ ब्रेक Okay. तो आप so you didn't discuss with anyone actually. You just made a नहीं आई decision. डिस्कस विद एवरीवन Okay. and Everyone everyone as in said no. in your family also. I discussed with my wife, she said no. I discussed with my co-founder, she said no. I discussed with my mom, she said no. I discussed with one of my uncle, he said no. I discussed with my astrological consultant, he also said no. No. Okay, but I know what I want to do. so so I तो did it. आपने ना वो चीज कर दिया लाइक सुनो सबकी करो अपने मन की. पता नहीं बट हाँ आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स टू दैट ओके आई एम हैप्पी बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज व्हाट हैपेंड डे इन डे आउट इन अ मंथ्स टाइम आई वाज हैविंग अ normal minute accidents 2 to 3 accidents Okay. because you are juggling around Hmm. you are juggling around between two professions 2 teams 2 people and that too also you have to very much sure what you have to speak what you Right. don't have to speak and everything all those things so since 2020 to till date I am at least have a peace of mind that I am not hitting my car banging around here and there so that is the one fruitful thing okay and I am happy most importantly so that Okay. is the thing yeah. So अगर आप अपना फर्स्ट जब आपने फर्स्ट सेंटर स्टार्ट किया हाँ. उसकी अगर आप जर्नी शेयर करो लाइक इनिशियल जो एक होता है ना द प्रोसेस एंड ऑल हाउ वाज द जर्नी. Journey was very exciting okay because when you start initially and I don't know because today also I have the same passion problem is this राइट. okay when we started our first center in 2017 it was a small unit a flat based structure only okay all the deliveries I was taking around 10 p.m 11 p.m late night somebody sending the material from Delhi sir 11 बजे भेजेंगे तो हाँ okay okay I'll be there okay Sunday Diwali and everything I was doing there only Right. making the centers and everything so but yes that passion is still there okay so that complete process was there I don't say that any problems I face it was general normal thing uh, which happened okay and 4th November 2017 we did the puja over there Okay. okay now again we opened it in November the मिड सेशन. not mid session it is a lean period kind of a thing winters everybody हाँ. has taken the admission so Right. November December January 3 months I was sitting idle there आई वाज अबाउट टू आस्क लाइक क्योंकि आपने मिड वैसे ओपन किया है तो एडमिशंस का स्ट्रगल तो रहा होगा. देखिए कोई भी आप काम शुरू करते हो इसमें बड़ा सिंपल थ्योरी है मेरी people ask for the right time peak season end time last time whatever it is मेरा thought process different है इसमें मेरा thought process ये है कि आप कोई भी काम करो आपको उसे 1 साल केवल शटर अप करना है सो दैट पीपल विल एक्नॉलेज यू कि ये कंपनी ये शॉप ये शोरूम वट एवर यू वांट टू से ये है सी आई चेंज माई मिल्क वेंडर आफ्टर 10 years लास्ट वीक आफ्टर 10 years सो एक साइकोलॉजी दिखाता है ये मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम अपना दूध वाला भी सब्जी वाला भी हम इतने इजीली चेंज नहीं करते हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं सो here we are talking about the preschool admissions. Correct. Until and unless parent will trust you and how they will trust you
by seeing you opened every day Right. with a beautiful smile on you. Correct. So you have to be patient for all these things. How you'll gain trust? So whenever you'll start, just keep in mind that we have to be there and every day. Right. वो कहते हैं ना, शो अप एवरी डे. मतलब आपको ट्रस्ट, जब आप जाओगे ही नहीं, आपको कोई देखेगा ही नहीं, आप सोच रहे हो मैं लेट जाऊंगा, बाद में आऊंगा, अभी तो कोई आ नहीं रहा होगा, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट वे. और कोई भी प्रोफेशन हो, सेम सेम. आपको क्राउड तभी आएगा जब आपको वहां देखता रहेगा कि रेगुलर, अच्छा दे आर देयर. यस. Right. So you started with your first center in 17, and when was the next franchisee of it that No, opened? so initially we started company owned centers only. नहीं नहीं, मतलब आपका अपना सेंटर था, but then you started giving out franchises for it. Franchisees we started somewhat during COVID Okay. era, or in 2021 you can say we started with the franchisee business. Okay. Yes. So अभी like approximately कितने franchises हैं? Total 50 plus schools we are running with right now, out of Okay. which 4 are the company owned centers, 4 or 5 are the company owned centers, rest all are the franchisees. So we are operating in Ghaziabad, we are operating in Gurgaon, we are operating in Faridabad, we are operating in Delhi, Chhattisgarh we are operating, Bareilly we are operating. Okay. Predominantly we are here only in Noida, Delhi NCR, but yes, we are slowly and gradually we are trying to enter other states as well. Cool. So I think like by the next few years, any state I'll be going to discover first step, hopefully. Hopefully. Okay, so if I talk about the listeners जो maybe inspired हो इस journey से and maybe have that inclination कि हाँ ठीक है, maybe I can explore this field for doing something of their own. तो उनको अगर हम बताना चाहें, like what are the main revenue streams in the preschool business? सी प्री स्कूल बिजनेस में आपके 2-3 सेगमेंट्स होते हैं. वन इज योर प्री स्कूल प्रॉपर 9 to 12, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, अपर KG. Right. Okay, whereas Discover First Step is also offering the support for grade 1 and grade 2. Okay. If your premises supports you and local administration allows you and statutory compliance are there, then we are providing a franchisee till grade 2. Okay. Okay. Now one is this, second is a daycare stream. Okay, the parents who are working, so 9 to 6:30 they leave the children for a daycare, so that is also a very good revenue generation stream over there. And third is a music academy and the evening classes, creative arts classes, so that is also there. Okay. Okay, so like tuition classes and all those things. So this is like, it is an optimal utilization of the property, because either you have a property, own property, or you have a rented property, right? But आप उसका पूरा at least 24/7 नहीं तो 12 hours तो utilization आप कर ही ले. Correct. Right. School, preschool तो like midday खत्म हो जाता है. Right. Preschool gets over by 12:30, 1 hardly. Maximum, and by 1 PM to 6 PM you have all the options available कि आप ये सारी चीजें implement कर लें. ठीक है. So with Discover First Step we have a good part is that we have a good tie-up with the corporates. Okay. So IBM, PayPal, Cisco, Paytm, Microsoft, Google, Mastercard, Newgen, NXP. So a lot of companies are there. So which reimburse the daycare payment as per 2017 Maternity Act. Okay. They reimburse the daycare payments to us. Okay. Yes. So somewhere the parents are getting that benefit. Yes. If they are enrolling their children into your. Yes. So this benefit is not extended to all the preschools. It is limited to certain brands only. So Discover First Step is one of them. Okay, that's unique. I mean, because I think मैंने ये नहीं सुना था किसी और स्कूल में. उससे भी क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, रेवेन्यू थोड़ा सा जल्दी आना शुरू हो जाता है. एंड पेरेंट्स उनको भी थोड़ा इजी लगता है ना, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है. Yes, because see what happens is that these companies don't get you on board just directly. It's not that cakewalk. I am in touch with Samsung since last more than a year. Okay. We are having discussions, negotiations, and they have audited 3 of our centers. And this is the same process everybody follows. Like IBM has ENY is also on the panel. So ENY is the auditor for IBM for us. Okay. So they audit our center. ENY audit our center. Okay. Talking of audits, तो एक तो IT के टाइम पे ऑडिट था, तब भी EY ऐसी कोई कंपनी आपके वहाँ पे आती है, ऑडिट्स करती है. आज भी ENY आज भी वही ऑडिट कर रही है, बस ऑडिट का थोड़ा तरीका चेंज हो गया होगा. हाँ, right. Since you have been, I guess, through both the audit phases, so how would you compare that? बहुत difference है. Just want to know that. Audit is always about the operational stuff. Okay, कि आपके क्या रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, एंड हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट.
अब जैसे आईटी में तो भाई आपका जैसे पासवर्ड शेयरिंग नहीं होना चाहिए, साइबर आर्क दे वर यूजिंग, राइट, साइबर आर्क में व्यू है कि नहीं है, राइट। कई बार टूल्स में जैसे प्रॉपर्टी फाइल्स में पासवर्ड बाद में एनक्रिप्ट होता था, लेकिन वहां पे जाके तब भी आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, जिसको थोड़ा सा भी टेक्निकली इंटरनली नॉलेज है तो वो कर सकता है, या मिडलवेयर में जाके पासवर्ड दिख जाता था क्योंकि इट वाज अ फ्रंट एंड थिंग, ठीक है। तो वहां पे उस तरीके की ऑडिट्स हैं, या आपने एसओपीज क्या फॉलो करें, डॉक्यूमेंटेशन क्या फॉलो करा है। यहाँ प्री स्कूल की अगर मैं ऑडिट्स की बात करूँ तो वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर इट एंड वी टच बेस एवरीथिंग into that, whether it is teachers training, teachers happiness index, center head happiness index, and how many students are there into the class, neatness, cleanliness, hygiene, food, what they are implementing, are they implementing the food as per the planner given by the head office, Okay. or they are not following the same. And then safety measures. Yes, yes, of course, everything. So that is a complete list of it, and we randomly, our auditor called to the parents also that what is your feedback. So we do such things as well, and we mention it in everything. तो कौन सी सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल होती है स्कूल चेंज के लिए? लाइक जैसे इंडस्ट्री का तो मुझे पता है आईएसओ वगैरह सी होती है। इसमें क्या होता है कि ये ट्रस्ट गवर्न करती हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट गवर्न करते हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वी आर गवर्न बाय अनुरा चाइल्ड केयर फाउंडेशन, एंड वन कंपनी इज अ डिस्कवर फर्स्ट स्टेप प्राइवेट लिमिटेड। सो डिस्कवर फर्स्ट स्टेप प्राइवेट लिमिटेड टेक्स केयर ऑफ द फ्रेंचाइजी बिजनेस। ओके। अगर मैं पेरेंट्स के हिसाब से बात करें, सो पेरेंट्स ऑब्वियसली द फर्स्ट एडमिशन देयर किड इज वेरी स्मॉल, प्री स्कूल या नर्सरी में जो एडमिशन कराएंगे, सो दैट टाइम दे हैव दैट इमोशनल थिंग कि मेरा चाइल्ड जहाँ भी जाए सेफ रहे, सब कुछ ठीक रहे। सो व्हेन दे कम फॉर द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल, लाइक इंक्वायरीज एंड ऑल, तो व्हाट आर द टिपिकल क्वेश्चंस दैट दे आस्क? See, every parent has different set of questions in their mind. Few parents look at the preschool in a way that I am sending my child for a play and food. ओके। Okay. Few parents think they are only concerned that I'll leave my child in morning and I'll pick my child in evening. Till that time, the child should be taken care well. Then another type of parents are there that they want some learning portion also. Right. Okay, that my child should able to speak, my child should able to write, my child should able to identify the things. Right. Small developmental Developments. things they are looking for. Toilet training is one of the concerns because all the parents want to remove diapers. Right. Okay, and when they come to है भी us, तो बहुत महंगे ना। and when they come to us, they their one this is one of the major objectives that when we will be removing the diapers and everything. Okay. Okay, and unfortunately we have also seen that ADHD and autism cases has also been increasing day by day these days. So those parents also comes to us. Okay, we take the admissions also, and we are taking from the first day itself. We have studied a lot about these things, so now we are able to cure them also. Okay. Yes, so I will not say the exact word cure, but yes, we follow the pattern Much in a better way than. much, yes, that improves their condition and it is helpful for the parents as well. Okay. Depending upon the age group, depending upon the social environment, depending upon the family thinking and the thought process, and every parent, like we say na, that every child is different, so every parent is different and they have a different expectations. Right. Few parents comes in that we want to go for this formal school, so whether your curriculum is getting in line with that or Correct. not. Correct. Few parents is like that we are moving to Canada, so just we want here for the regularity purposes and everything. कि discipline आ जाए बच्चे में। Yes, few parents specifically look for that what kind of an environment is there, what kind of teachers are there. Okay, so हर parent का एक अपना अपना requirement होता है, and somehow Discover First Step is able to answer and satisfy all the parents. Okay. And how do you build that trust factor? Because parents तो obviously 4 स्कूल और भी घूम के आ रहे हैं। तो how do you build that trust factor कि वो आपके पास ही एडमिशन करवाए? हाँ, देखिए डिस्कवर फर्स्ट स्टेप का मार्केटिंग बजट है 0. Okay. ठीक है, फॉर एडमिशंस, Okay. एटलीस्ट ऑन आवर सेंटर्स. ओके, द रीजन इज initially तो ठीक है, it was a problem, a comparative analysis was there, but now the branches which are 5 years old or anything, we get mostly parents by references. Right. Cousins, second child, इसका बेटा उसका बेटा. तो लेकिन मैं वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए जब पेरेंट एंटर करता है ना,
किसी भी प्रमाइसेस में, हमारी डीएफएस की प्रमाइसेस खुद इतनी लाइवली होती है, ही अंडरस्टैंड द जेस्ट कि दिस इज द राइट प्लेस। सबसे बड़ी चीज़ प्री स्कूल में अगर किसी पेरेंट को देखना चाहिए कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो कैसे लोग हैं, राइट, what kind of teachers are there, करेक्ट, how educated are there. We mostly consider the teachers who are postgraduates with us. ओके, Yes, if I talk about sector 116 branch, they all the teachers are postgraduate. Not even one is only the graduation, and in fact, nursery ma'am is there. She is double postgraduate. ओके, So why I am telling you this, as a parent, you should have a thought process. Yes, this organization management has put up so qualified teachers for my child. राइट, पढ़ाई से एक फर्क पड़ता है कि बहुत आप फर्क क्या पड़ता है। कहाँ से आ रहे एंड क्योंकि ना प्ले स्कूल, प्री स्कूल एंड ऑल, दे आर लाइक द फर्स्ट थिंग जहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। हैं। फिर आपका नीटनेस, क्लीनलीनेस कैसा है। अगेन क्लीनलीनेस इन इंडिया इज सब्जेक्टिव टू पर्सन एंड एवरीवेयर इट इज सब्जेक्टिव टू पर्सन, बट मी माई सेल्फ इज अ बिट फिनिकी, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ द क्लीनलीनेस। माई को फाउंडर सीम्स टू बी द सेम। अगेन वो एक नेचुरल ट्रेट है जो कि हमें इस हमारे बिजनेस में काम में बहुत हेल्प करता है, राइट, राइट। सो एक क्लीनलीनेस हो गई। थर्ड कम्स योर करिकुलम। Curriculum, in my view, is extremely important. It plays a major role. करेक्ट, There are certain apprehensions to this कि बच्चे को पढ़ाई नहीं कराइए, burden हो जाएगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे कहते हैं। I'll take couple of minutes to you to explain to you this. अभी क्या हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 8 तक फेलियर सिस्टम बंद करा था, अब दोबारा से उसे री इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। 10th के बोर्ड्स खत्म कर दिए थे, ठीक है। आप एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करते जा रहे हो, करेक्ट, 10 तक, ठीक है। फिर आपका 11 12th में आपका सिलेबस वैसा का वैसा ही है। फिर 12th के बाद जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आई एम ओनली टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रैक्टिकल सिनेरियो विच इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स टुडे इन इंडिया, राइट, ठीक है। नॉट बीइंग मॉडेस्ट, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। 12th के बाद पेरेंट्स के पास आज भी क्या ऑप्शंस है, वही 4 कॉम्पिटिटिव, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, ठीक है, या कुछ और अपना बैंक पीओ, आईएएस वगैरह, ये सारी चीजें, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस लेकिन ही हैं। सबके लिए पढ़ाई तो उतनी बराबर करनी है। हाँ, आप पूरी जिंदगी पढ़ाना नहीं चाह रहे हो बच्चे को, राइट, ठीक है। आप उनका जो एक टेम्परामेंट होता है, एक एक्यूमेन होता है, वो आप खत्म कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि पीपल हैज स्टार्टेड कंपेयरिंग इंडियन सोसाइटल एजुकेशन सिस्टम विद द अब्रॉड वन। जैसे आप रील्स देखेंगे तो जापान में ये सिखा रहे हैं, चाइना में सिखा, दे कैन अफोर्ड टू टीच देम दीज थिंग्स बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड कंपटीशन लेटर, राइट, कि बच्चे का जॉब भी नहीं लगा तो गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ देम, राइट, and they have designed the whole society, whole ecosystem is designed in such a way. After 12th कोई भी आप सोसाइटी में जाएंगे तो कोई ये नहीं कहता हाउ वेल बिहेव्ड योर चाइल्ड इज, द क्वेश्चन इज अभी क्या कर रहा है बच्चा, 12वीं में कितने आए थे, बोर्ड में है कितने ना, आए बोर्ड थे, में क्या मार्क्स आए थे, अभी आप क्या कर रहे हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। राइट, सो वहां का इकोसिस्टम उस तरीके की पढ़ाई को सपोर्ट करता है, राइट, हमारा इकोसिस्टम तो वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। राइट, तो अब आप क्या कह रहे हो, मैं यहां से रिफॉर्म लाऊंगा, लेकिन जिस एरिया में आप रिफॉर्म ला रहे हो उस बच्चे के साथ तो आप गलत कर रहे हो, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, सो आई एम अ वेरी गुड एडवोकेटर ऑफ कि आप बच्चे को पढ़ाइए, मैम सेम ईयर, लिखाइए, पढ़ाइए, जब तक आपकी पूरी सोसाइटी रिफॉर्म नहीं हो जाती। करेक्ट, डोंट ट्राई टू बी मॉडेस्ट। हाँ, people can be modest, the people who are at the top notch, who are earning like anything, and जिनका ये कि future they see into the different countries, not in India. But for the parents who are seeking their future in India, that we are going to be remain in जिनको India, ये पता है कि उनके बच्चे जॉब ही करने वाले हैं, right, उनको तो कंपटीशन के हिसाब से शुरू प्रिपेयर से होना पड़ेगा। पढ़ाइए। पढ़ाई, अब मैं आपको एक फैक्ट, डेटा तो नहीं है बट इट्स अ फैक्ट, आप किसी भी फॉर्मल स्कूल्स के 10th के अटेंडेंस निकालिएगा, 11th का अटेंडेंस निकालिएगा, 12th का निकालिएगा, यू विल हैव दिस कर्व। 11th में अटेंडेंस नहीं है क्योंकि बोर्ड नहीं है। आंध्रा गवर्नमेंट ने 11th को भी बोर्ड में इंट्रोड्यूस करा जिससे कि उनकी अटेंडेंस ठीक आ पाए। सो ह्यूमन साइकोलॉजी रन्स बाय द बाउंडेटेड थिंग्स। अब जैसे आई हैव अ थॉट प्रोसेस कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए या कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए? सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दैट वी शुड बी कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। उसमें आगे एक लाइन है कि आप उस चीज को लेके परेशान मत होइए, लेकिन कंपेयर ही नहीं करेंगे तो आप अपना रोड मैप आगे का या करेक्टिव मेजर्स आप कैसे लोगे? सो आई हैव अ वेरी बेसिक
thought process, and maybe few people can say this is a very orthodox mindset I'm talking about. Many people will So disagree, but yeah, but मेरा thought process बड़ा simplistic है. Comparison तो it's very much, हाँ, comparison कहाँ करना है, कैसे करना है, किस जगह करना है, वो ध्यान रखने की जरूरत है. लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को अगर वन वर्ड में या एक इजी वर्ड में डालूं तो इंट्रोस्पेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए. इंट्रोस्पेक्शन इज व्हाट? यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव एनालिसिस. मे बी यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर previous version. Yeah. right? Me and my wife as parents also have that kind of a same thought process about our child. Education कैसा होना चाहिए. Right. And we had the same kind of discussion with her teacher also. कि आप ये मत सोचो कि क्योंकि बाकी पेरेंट्स मना करते हैं डांटने से या कुछ वैसे, हमारा तरफ से फ्रीडम है. आपको लगे बच्चा गलत कर रहा है, प्लीज यू हैव द फ्रीडम, डांटो उसको. जहाँ वो गलत है इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शंस. आप ये मत सोच के रहना कि पेरेंट्स आके कुछ चिल्लाएंगे, बिकॉज नाउअडेज दैट हैज बिकम अ नॉर्म आल्सो. कई पेरेंट्स का तो मैंने ये भी सुना है ना कि अरे यार स्कूल में होमवर्क भी देते हैं, क्यों देते हैं, स्कूल में पढ़ाएं सीधा, क्यों नहीं दें. एक आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए होमवर्क का, स्पेशली छोटे बच्चे को होमवर्क देने का, आप होमवर्क वर्ड आपका हो सकता है यू हैव अ बैड मेमोरीज विद द वर्ड होमवर्क. ओके, तो होम टास्क वर्ड यूज कर लें, होम असाइनमेंट कर लें, या होम एंगेजमेंट विद पेरेंट कर लें. अब 2 साल के बच्चे को होमवर्क देने का रीजन होता है. रीजन ये है बिकॉज ऑब्वियसली दैट चाइल्ड कैन नॉट ओपन द जिप, बट दैट चाइल्ड विल ट्राई टू ओपन अ जिप, राइट? That child will open the book, right? And obviously parents will be there, so it is an engagement, and it is basically, this task is for parents, that they get to know what my child is doing, what my child is able to do, and or what are the corrective measures they want to do. Correct. So look it at as a engagement time period, maybe hardly 15 minutes how much a child will take. वर्क होता है कितना है. हाँ, so 15 मिनट के लिए अगर आप अपने बच्चे के साथ डेडिकेटेड बैठ जाओ तो it's a good thing कि school, by this way you are getting a reason to be connected with your child. जनरली मदर्स क्या कहती है कि दिन भर तो मैं ही ख्याल रखती हूँ, but you are taking care of your child for the biological needs, right, and the safety of the child, but you are not spending time with your child. There are two different aspects to it. It applies to both the parents depending on the no, I am talking in general. See what, हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो हम लोग ये समझाते हैं कि जब बच्चे की बायोलॉजिकल नीड्स खत्म हो गई, उसे खाना खिलाना है, सुलाना है, आपको रेडी कराना है, व्हाटएवर, उसके बाद आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट इज द टाइम यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद द चाइल्ड, राइट, एंड दैट इज वेयर द बॉन्ड डेवलप्स. yes. Since we are talking about the child safety and security things also earlier, तो just to ensure कि पेरेंट्स को वो उनको वो कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये स्कूल में सब कुछ ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू इम्प्लीमेंटेड? सीसीटीवी है, ठीक है, फिर आपका सॉफ्ट कुशनिंग वॉल पैनलिंग होती है हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, फिर सॉफ्ट फ्लोरिंग्स हो गई, कुशन फ्लोरिंग हो गई कि जिससे बच्चा गिर रहा है अगर तो उसको ज़्यादा कुछ चोट ना लगे, ठीक है. तो डोर कवर्स आने लगे हैं आजकल, लॉक्स आने लगे हैं आजकल, तो वो वहाँ पे चीज़ें रहती हैं. फिर कर्व्ड फर्नीचर रहता है सारा, वुडन फर्नीचर मोस्टली वी वुड प्रेफर, और प्लास्टिक फर्नीचर, सो दैट थोड़ा सा शार्प एजेस ना हो उनके, ठीक है. इफ़ यू आर यूजिंग वुडन ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज़ अ सॉफ्ट रबर वुड विच यू आर यूजिंग, तो बच्चे के अकॉर्डिंगली. सो जो हमारे प्रीमाइसेस डिजाइंड होते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है. शूज वी डोंट अलाउ इनसाइड द स्कूल, सो अगेन कि थोड़ा थोड़ा डस्ट पार्टिकल आके भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल आ जाता है, ठीक है. सो दैट इज आल्सो नॉट अलाउड. फिर वीकली सैनिटाइजेशन इज स्टिल देयर. We started in 2017 also, that every Saturday we have a deep cleaning program into the school. So every chairs, tables, everything will be washed completely and sanitized properly, all the toys and everything. आपको कोविड के टाइम पे अलग कुछ करना नहीं पड़ा, because you were already following those things. Right. Yes. And all the each and every corner of the school is under CCTV surveillance. We keep it, and we have the facility for the parents that they can also have the access for the live feed whenever they want. ओके, जब हम लाइव फीड की बात कर रहे हैं, डजंट इट रेज एनी प्रिवेसी कंसर्न्स? नहीं, व्हाट प्रिवेसी कंसर्न्स? लाइक ठीक है, पेरेंट्स के पास एक्सेस तो आ गया, लेकिन अब उनके पास एक्सेस तो पूरा कैमरे का ही आया. हाँ, ऑब्वियसली. एंड दे आर नॉट जस्ट मॉनिटरिंग देयर चाइल्ड, दे आर मॉनिटरिंग अदर चाइल्ड्स आल्सो. तो कहीं भी दूसरे पेरेंट्स कुछ कंसर्न रेज नहीं करते? देखिए, कंसर्न किस चीज का? पहली चीज तो it is a mandate thing these days from the government side, that it should be CCTV surveillance होना चाहिए. पहला चीज, ठीक है. दूसरा चीज, सीसीटीवी सर्विलेंस है तो एटलीस्ट एवरीबडी ऑन पीस ऑफ माइंड कि एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड एंड आर्टिफैक्ट इज गेटिंग रेडी.
Okay. right? Third thing is how I see it. I cannot watch each and every school on my own, Hmm. but whereas my parent is watching on behalf of me, and when they are not only watching their own child, they are viewing the whole class. If anything is going wrong, anything going bad, so they can at least inform to the management or the center head or Right, the right, teacher right there in time. So I have so many eyes right. कि एक ही क्लास में अगर मेरे 5 पेरेंट्स ने भी ऑप्ट करा है, एक फैमिली ने अगर 5 फैमिलीज ने ऑप्ट करा है, तो एक फैमिली में मदर भी है, फादर भी, तो आई हैव 4 आईज, 4 फादर, 20 आईज आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग माय क्लासरूम्स. So this is my perception to see to it. This actually helps answer the query of the parents जिनको भी अगर ये concern होता है Yes. कि why live feed, now they get an answer. नहीं, लाइव फीड होना बहुत जरूरी है. अब आप लाइव फीड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पेरेंटिंग, कि इफ यू आर गोइंग टू करेक्ट योर चाइल्ड बाय मेंशनिंग दैट मैंने कैमरे में देखा था, देन इट गिव्स अ कांस्टेंट ट्रिगर टू योर चाइल्ड कि अच्छा मैं तो क्लास में हूँ बट माय फादर इज वाचिंग मी. राइट, राइट. वो पेरेंट का इम्पोर्टेंस एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि आपको अपने बच्चे से कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है. आप बच्चे को मत बताइए, एटलीस्ट फॉर स्कोल्डिंग और करेक्टिंग तो आप नहीं बताइए कि मैंने कैमरे में देखा था. राइट. सो कैमरास शुड बी देयर एवरीवेयर, इट शुड बी देयर, जिससे कि आपको एक पीस ऑफ माइंड है. बिकॉज एंड आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन. डिस्कवर फर्स्ट स्टेप इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. वी डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग. व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. राइट. बिकॉज जब तक आपको कुछ अगर मिसहैपनिंग हुई भी है, आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे हुई है, आप उसे करेक्ट कैसे करेंगे? Agreed. If I talk about the marketing campaigns and all, so what kind of marketing? I mean, you did mention कि आपका marketing budget zero है, but still talking about the social media presence and all. जो What kind of न्यू things you do? सेंटर्स आते हैं हमारे, तो उसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं. मेटा एड्स हो गए आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, वो सारे हमारे शूट्स वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं. तो वो एक नॉर्मल जो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वी फॉलो इट. एंड एट द सेम टाइम we do society events, social connects we built up. That is an offline marketing. Okay, reference connect, RWA events, we go for a drawing competition or any event. So there are different forms to it. Okay, like 26th January or 15th August, we always go for a drawing competition. We distribute certificates and everything and the prizes to the society. So इससे क्या है, आपका एक व्यू मिलता है सोसाइटी में, आपको एक रिकग्निशन मिलता है, and somehow and we always get the admissions also at that point in time. Okay. And talking about the social media, so do you like also put videos and all on the social media? Yes, everything. जो डेली का हमारा होता है स्कूल का. इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड अन ईयर बैक, आई थिंक 2 years back, that कि we go Facebook live also. Assembly. If parents are not taking the CCTV feed or something, so they are aware about कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो भी एक हमने एक एंगेजमेंट उससे मिल जाता है. अच्छा, बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसका भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं. देखिए 2 साल का बच्चा पेरेंट आपको देके जा रहा है, नाउ दे वांट टू नो कि मेरा बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या नया सीख रहा है. Being a parent, I can relate to that emotion. राइट. वो इमोशनल जर्नी बहुत टफ होती है इनिशियली. पहला एडमिशन सबसे टफ होता है. राइट. तो इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि हम फेसबुक, इंस्टा पे जो भी बच्चा परफॉर्म कर रहा है, हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं. सूनर और लेटर, मे बी इन अ वीक्स टाइम और समथिंग, सो दैट पेरेंट्स गेट अवेयर कि व्हाट इज गोइंग अराउंड. Okay. And just to cover the privacy concerns and all, so do we take any consents from the parents? Yes. Okay, just to make the environment a bit light, तो मैंने छोटा सा fun segment रखा हुआ है. अच्छा. Just like rapid question types. Okay. The first question is like, who cries more on the first day, the kids or the parents? Parents. Okay. As an ex-IT guy, one thing that you never thought you'd be doing. I'm very flexible, so I never thought that I won't be doing this. So. Okay, most unexpected question from a 3-year-old child. कि बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं. One child didn't ask. One child said me, "Papa." Okay. The chai in the IT office or the chai in the school premises? Chai in the school premises. Which is harder, the IT troubleshooting versus the preschool problem solving? IT troubleshooting for me. Okay. Okay. If you compare your journey from the IT perspective, तो कौन सा why ज़्यादा difficult है? The why from the stakeholders in the organizations or the why from those small kids? बच्चे why तो पूछते रहते हैं हर question पे. तो which is more tougher? Tougher. I won't consider it as tough.
Okay. Your favorite toy in the daycare? फाइन मोटर स्किल्स, देयर इज अ फाइन मोटर स्किल का एक आता है वॉल पे लगता Okay. है, तो दैट इज अ वेरी एंगेजमेंट टूल. And what is the most important rule for a teacher according to you? टीचर्स शुड कनेक्ट विद द चाइल्ड. Any technology that you implemented from your like IT background to make your preschool business smooth? नो, नथिंग. Okay. Last question. Which one would you prefer? The code debugging or the children's tantrums? चिल्ड्रन टेंट्रम्स. Okay. Cool. So that brings us to the end of the fun section. Before we end up, few things that we would like sure, to talk sure. about. What are the latest trends that you see in the education sector? Like since education is evolving very fast in the recent few years, especially after COVID. कुछ ऐसे trends जो आप देख रहे हो जिससे प्री स्कूल बिजनेस इन्फ्लुएंस हो रहा है? एक जो सोसाइटी में कमोडिटी जो बिजनेस है, वहाँ की जो मार्केटिंग पैटर्न्स हैं और जो डिस्काउंटिंग पैटर्न्स हैं, दे आर इम्पैक्टिंग द एजुकेशन सेक्टर वेरी बैडली. Okay. अब पेरेंट क्या है, दे यूजिंग डिफरेंट ऐप्स. अब पेटीएम में कैशबैक मिला या कहीं किसी और ऐप में कैशबैक मिला या कोई डिस्काउंट मिला, दे लुक, एंड बिकॉज इट इज नॉट देयर फॉल्ट, मॉड्यूल हम सबका इस तरीके से डिजाइन हो गया है, Right. राइट. नाउ दे डिमांड द सेम डिस्काउंट एंड पैटर्न्स इनटू द प्री स्कूल इंडस्ट्री और द एजुकेशन सेक्टर आल्सो. And I'll not blame them. I also heard that. बट द पॉइंट इज, मैं सबको अगेन एटलीस्ट इन द प्री स्कूल इंडस्ट्री में ये समझाना चाहूंगा, पेरेंट्स को एटलीस्ट, कि आप ये देखें कि आप इन इंस्टीट्यूशंस को जैसा पैसा देंगे, एटलीस्ट मैं प्री स्कूल्स की बात करूँ, नॉट द फॉर्मल वंस, ठीक है, वहाँ पे तो फीस वगैरह बहुत हाई साइड पे होती है, बट प्री स्कूल में आप जहाँ भी एडमिशन करा रहे हैं, गिव द कंप्लीट फीस. Okay. आप समझिएगा कि 10 बच्चों पे एक टीचर, एक नैनी उन्हें अपॉइंट करनी है. सिंपल सा मैथमेटिक्स है. देयर आर स्कूल्स हु चार्ज 3000, देयर आर स्कूल्स हु चार्ज 7000, 5000, 6000. अब कंसिडर इट फॉर 4000 रुपीज. अगर कोई स्कूल को आपने डिस्काउंट अगर करके 4 दिया, 10 स्टूडेंट्स का 40,000 आया, ठीक है. नाउ यू टेल मी योरसेल्फ कि अब आप उस 40,000 में एक टीचर भी अपॉइंट करनी है, एक नैनी भी करनी है, आपको रेंट्स भी देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी देने हैं, और जो ओनर उसे चला रहा है उसके अपना मार्जिन प्रॉफिट्स भी निकालना है, टैक्स भी देना है. अब वो नहीं, कहाँ से नहीं देगा, वो क्या करेगा भाई, आप ही ने तो बोला ना कि मैं आपको इतना ही पैसा दूंगा, तो आपने जितना पैसा दिया आपको उतना ही सर्विस मिलेगा. तो अब जो वहां पे नैनी आएगी, जो वहां पे टीचर आएगी, वो अंडर क्वालिफाइड आएगी, नॉन डिजर्विंग आएगी, और जिसका इम्पैक्ट आपके बच्चे को मिलेगा. Correct. That person has to run the business which you are not understanding. So सभी पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई फीस कम ले रहा है तो जाके पूछो कि हाउ यू आर मैनेजिंग इन दिस फीस. Okay. मतलब थोड़ा सा समझने, एक बेसिक आदमी को समझना तो पड़ेगा, आप जिस चीज के पैसे ही नहीं दे रहे हो. अभी बहुत सारा हम साल में 2-3 बार केसेस सुन लेते हैं कि न्यूज में ये आया, उन दीदी ने मारा, उस टीचर ने बच्चे को मार दिया. तो वो वही स्कूल्स होते हैं जहाँ पे फीस नहीं दे. आई एम नॉट डिफाइनिंग, जो उन्होंने करा गलत करा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना. लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको. एक किसी 5 स्टार में आपने टी ऑर्डर करी, दे विल गिव यू सम ब्रेड्स, दे विल पुट अप सम म्यूजिक, दे विल गिव यू फाइन कटलरी, ओके, ambience and all and everything, and that person will be very nice, softly spoken, and everything will be there, ठीक है. that tea will cost you somewhat around 2000 rupees a cup, राइट. अब आप उसको कंपैरिजन कर रहे हो अपने ऑफिस की बाहर जो कटिंग मिल रही है 10 रुपए की, 20 रुपए की, वो तो थर्माकोल में ही देगा ना. देन यू से कि यार तू कुल्लड़ लगा ले, राइट. तो मेरा मन है, आप जैसा पैसा दोगे आपको वैसा ही चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए. देयर इज नो, एंड एजुकेशन तो अगेन इट इज वेरी मच पर्टिकुलर थिंग. Obviously, this helps answer the parents' questions also. Maybe now they'll not be asking too much of discounts. What is your long-term vision for the preschool business for yourself? See, I at least want to see Discover First Step as a pan-India brand. Okay, like if anyone asks what is Discover First Step, so everybody should be aware about it. That Discover First Step is a preschool and daycare. And what would be your advice to someone who has the dream of doing something of their own but still have not taken that first step? You should do. किसी भी उसमें हो, फॉर्मेट में हो. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग अपने पैशन को ज्यादा, मतलब यू हैव टू बी ऑन टू द फ्लोर्स. आप पहले तो ये देखो कि आप एक तो एक कुछ करना चाहते हो, ठीक है. जैसे मेरा ये नहीं था कि मुझे एजुकेशन में जाना है, मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, ठीक है. बट आई डिडंट हैड दैट मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूं. जितनी स्कीम्स अब चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोदी गवर्नमेंट की वजह से, अब तो बहुत है, तब नहीं थी, ठीक है. सो आप ये देखो, दो चीजें कि एक तो मुझे कुछ करना है और फिर मेरे पास क्या फंड्स अवेलेबल है. देन यू स्टार्टेड. मे बी आपका पैशन कुछ और हो कि मुझे आना इस लाइन में, लेकिन आप जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक आप वहां कैसे पहुंचोगे. करेक्ट. अब पीपल टेंड टू वेट
कि मैं उतना पैसा जोड़ूंगा फिर जाके मैं वो शुरू करूंगा, तो दैट नेवर कम्स। जितना है उसी में आप शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके। I think that gives the message to the people. Hopefully, they will listen to it and implement it. And to everyone listening, I mean, if this episode has given you that clarity or that courage, please take that step. Don't hold yourself back. करके देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा. And if you did find something insightful from this episode, कुछ अच्छा मिला है, कुछ कहते हैं ना ज्ञान मिला है, तो please do share it with your circle so that they also take that benefit. जाने से पहले please don't forget to like, subscribe and share to the channel. Stay safe, stay secure.